Assalamualaikum students, I hope you all are fine. This is Bisanam Shujat and I am back with the new video session of Sir Sayyid Children's Academy. Today I am going to take your English language class. Now let's move forward and see what is our today's topic. Today is your English language class, so make sure you have your junior English, your English language copy and your stationery box. In our lecture number 4, we are going to study preposition. What is preposition? A preposition is a word which shows relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. Preposition वो words होते हैं जो sentence में किसी noun या pronoun का सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्शन और रिलेशन शो करते हैं. कैसे? बाय टेलिंग इट्स लोकेशन, उसकी लोकेशन शो करके या टाइम शो करके और मूवमेंट या डायरेक्शन शो करके. लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और लोकेशन. लुक एट दिस पिक्चर. In the picture number 1, the ball is above the box. The ball is a noun. The box is another noun. Which word is connecting these two nouns? कौन सा word इन दो nouns को connect कर रहा है? Above. As you can see that ball is above the box. ये ball box के ऊपर है. So we use a word above to tell its location or place. In the next picture you can see the ball is below the box. The ball is a noun. The box is another noun. The word which is connecting both of these nouns, वो word जो इन दोनों nouns को connect कर रहा है, वो word क्या है? Below. बिलो हमें बॉल की लोकेशन बता रहा है कि बॉल बॉक्स के नीचे है. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स. यहाँ जो वर्ड हमें इन दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है वो है ऑन. दैट मीन्स बॉल बॉक्स के ऊपर है. Now what is the difference between above and on? Above means भी ऊपर and on means भी ऊपर है. The difference is we use above when there is more distance between two objects. As you can see in the picture कि ball और box के बीच distance है. So when the object is not touching the surface, ball box को touch नहीं कर रही, उन दोनों के बीच डिस्टेंस है. दैट्स वाई हम वहाँ अबव यूज़ करेंगे. बट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टचिंग द सरफेस, बॉल बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन दैम, सो वी विल यूज़ द वर्ड ऑन. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स. बॉल बॉक्स के नीचे है. So the difference between below and under is that if there is more distance between two objects, अगर दो objects के बीच distance ज़्यादा है तो हम below का word यूज़ करेंगे, लेकिन अगर distance बहुत कम है तो हम under का word यूज़ करेंगे. Remember this कि अगर two objects के बीच distance ज़्यादा है तो हम above का word यूज़ करते हैं ऊपर के लिए and below का word यूज़ करते हैं नीचे के लिए. And if there is no distance, then we will use the word on अगर हम ऊपर की बात कर रहे होंगे, and अगर हम नीचे की बात कर रहे हैं तो we will use the word under. Next one is in front of the box. The ball is in front of the box. यहाँ बॉल की लोकेशन क्या है? In front of. So in front of is the word which is connecting the ball and the box.
बॉल और बॉक्स को जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है वो है इन फ्रंट ऑफ, यानी किसी चीज़ के सामने। सो बॉल इस वक्त बॉक्स के सामने है, दैट्स वाई हमने यहाँ क्या प्रपोजिशन यूज़ की है, इन फ्रंट ऑफ। द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। बिहाइंड मीन्स पीछे, गॉट इट। सो अगर कोई चीज़ पीछे है तो हम उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, behind. In the next picture, the ball is next to the box. Next to means बराबर में. So, next picture में आपको नज़र आ रहा है कि बॉल बॉक्स के बराबर में है. So, for this, we will use the preposition next to. In the next picture, the ball is in the box. In means अंदर. इस पिक्चर में बॉल बॉक्स के अंदर रखी हुई है। सो अंदर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। यहाँ बॉल 2 बॉक्सेस के बीच में है। सो वी विल यूज़ द प्रीपोजिशन बिटवीन। बिटवीन मीन्स बीच में। So the word between is connecting the ball and the boxes. In the next picture, the ball is among the boxes. Now what is the difference between and among? Between and among के बीच डिफरेंस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ओनली 2 आइटम्स के मिडिल में होगा, यानी कि 2 चीज़ों के बीच में होगा, तो हम बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे। यू कैन सी इट इन द पिक्चर। इस पिक्चर में बॉल 2 बॉक्सेस के बीच में है, बट इन द नेक्स्ट पिक्चर द बॉल इज़ इन द मिडल ऑफ मैनी बॉक्सेस। बॉल बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में है। सो फॉर दिस वी विल यूज़ अमंग। अमंग हम जब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा चीज़ों के बीच में हो, एंड बिटवीन जब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 चीज़ों के बीच में हो। इन द नेक्स्ट पिक्चर द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। इस पिक्चर में बॉल बॉक्स के करीब है। सो नियर इज़ द प्रीपोजिशन। इन द नेक्स्ट पिक्चर द बॉल इज़ far from the box. Far means दूर. So if we have to show the relation between 2 nouns जो एक दूसरे से दूर हैं, तो हम उसके लिए कौन सी preposition यूज़ करेंगे? We will use far from. As you see in this picture, आपको 2 nouns के बीच रिलेशन बताया जा रहा था बाय टेलिंग इट्स लोकेशन और प्लेस। इस पिक्चर में आपको 2 नाउन्स के बीच जो ताल्लुक़ बताया जा रहा था वो कैसे बताया जा रहा था, उनकी लोकेशन बता के वो कहाँ मौजूद हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम हम जब यूज़ करते हैं जब हमें टाइम यानी वक्त के बारे में बात करनी हो। Some main prepositions of time are at, in, on. At, in, on हम prepositions of place में भी यूज़ करते हैं, लेकिन prepositions of time में इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। at हम कब यूज़ करते हैं? with times of day। जब हम पूरे दिन में किसी वक्त के बारे में बात कर रहे हो तो हम at यूज़ करेंगे। at 4 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight. We use at when we talk about times of day. I wake up at midnight. मैं आधी रात को उठ गई थी। So, जब हम टाइम की बात करेंगे तो हम at लगाएंगे। सेम जब हम मील टाइम्स की बात करेंगे तो भी हम at यूज़ करेंगे, like at lunch time, at dinner time. In. We use in with months, seasons, years, decades, centuries,
लॉन्ग पीरियड्स। इन हम यूज़ करते हैं मंथ्स के नेम के साथ, मौसम के नेम के साथ, साल के साथ, सदियों के साथ, या फिर जब हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बताना हो तो। लाइक इफ़ आई से द स्कूल्स विल रीओपन इन जनवरी, स्कूल्स जनवरी में दोबारा ओपन हो जाएंगे। सो विद जनवरी आई यूज़ इन। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम इन विंटर, मुझे सर्दियों में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। सो विद सीज़न आई ऑल्सो यूज़ द प्रीपोजिशन इन। इसी तरह हमने ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज़ और लॉन्ग पीरियड्स के साथ भी इन यूज़ किया है। इन 1990, in 1983, in 2000, in 2020, in the 80s, in the 90s, in the 20th century, in the 18th century, in the past, in the present. Now, let's move to on. We use on with days, dates, and parts of a specific day. हम on यूज़ करते हैं दिनों के साथ, तारीख के साथ, या फिर दिन के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के साथ। लाइक ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन 15th जून, ऑन 20th मई, ऑन आवर एनिवर्सरी, और ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून। अगर सेंटेंस में डेज, डेट्स या किसी स्पेसिफिक डे की बात की जा रही होगी तो हम कौन से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करेंगे? ऑन। अपार्ट फ्रॉम ऑन, इन एंड एट, देयर आर सम अदर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एज वेल। ऑन, इन एंड एट के अलावा कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जो टाइम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग, used when something happens within the time something else is happening. We use during कि जब एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीज़ें हो रही हों। Look at the example. We stayed at a student hostel during the conference. हम स्टूडेंट हॉस्टल में ही रुके रहे कॉन्फ्रेंस के दौरान। That means जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो स्टूडेंट हॉस्टल में थे। सो वी यूज़ preposition during here to tell the relation between these two different things. Second is for, used with a period of time. We use for कि जब हमें एक टाइम पीरियड बताना हो कि वो कितने टाइम तक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 hours और सो, कि मैं सोने जा रही हूँ 2 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट इज़ until, till, up to a certain time. That means एक ख़ास वक्त तक, कि जब हमें टाइम बता दिया जाए कि कब तक ये काम होगा। Look at the example. We will wait till until 6:30 for you. हम तुम्हारा 6:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे। Next is since. Refers back to a point in time when something began. Since हम यूज़ करते हैं कि जब हम उस टाइम पे जा रहे हों जब कोई काम शुरू हुआ है। 40 years have passed away since they met. That means कि 40 साल गुजर गए जब से वो मिले हैं, यानी उन्हें मिले हुए 40 years past हो चुके हैं। Next is from, to show when something begins and ends. From यूज़ करते हैं कि जब ये बताना हो कि शुरू कब हुआ है, और to यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि एंड कब हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, her visit will extend from Monday to Thursday. उसका विज़िट बढ़ गया है मंडे से, from Monday to Thursday, थर्सडे तक। from हमने यूज़ किया मंडे के साथ बिकॉज मंडे स्टार्ट हो रहा है,
और ख़त्म कब हो रहा है? थर्सडे, सो टू हमने यूज़ किया थर्सडे के साथ। नेक्स्ट इज़ अगो, refers to how far back in time something happened. अगो रेफ़र करता है कि कितने टाइम पहले स्टार्ट किया गया था। Look at the example. He left the house over an hour ago. वो 1 घंटा पहले घर से चला गया था। An hour ago. 1 घंटा पहले। Next is before. Refers to any time previous to a specific point in time. That means कि किसी भी specific time से पहले के वक्त का जिक्र करना। She is always up before dawn. Dawn means कि जो सुबह का टाइम होता है जब सूरज निकल रहा होता है। So the meaning of this sentence is कि वो हमेशा सुबह होने से पहले ही उठ जाती है। So dawn is a specific time here. And before ये बता रहा है कि वो dawn से पहले यानी सुबह होने से पहले उठ जाती है। Next is by, not later than. That means कि जो टाइम हमें सेंटेंस में गिवन है उसके आगे या उससे ज़्यादा टाइम ना होना। So look at the example. He had promised to be back by 5 o'clock. उसने प्रॉमिस किया कि वो 5 बजे तक आ जाएगा। So we use the word by because यहाँ पे एक टाइम हमें दिया गया है 5 o'clock. By 5 o'clock means कि 5 बजे तक। टाइम इससे ज़्यादा नहीं होगा यानी 5 के आगे टाइम नहीं जाएगा। That's why we use the word by. After, used when we want to say later in time, then. After हम जब यूज़ करते हैं कि जब हमें किसी टाइम के बाद का बताना हो कि ये इस टाइम के बाद होगा। For example, I felt fairly relaxed after taking the medicine. मैंने बहुत रिलैक्स फील किया मेडिसिन लेने के बाद। That means कि जब मेडिसिन ले ली उसके बाद रिलैक्स फील किया। That's why यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? After, यानी कि उसके बाद। 2. Telling the time when referring to the number of minutes before the hour. It means टाइम बताने के लिए कि जब हमें नंबर ऑफ़ मिनट्स बताने हो आवर से पहले तो हम टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स अ 1:45. 1:45 मीन्स 2 बजने में अभी 15 मिनट्स हैं। सो हियर वी यूज़ द प्रीपोजिशन टू आफ्टर क्वार्टर यानी कि मिनट्स के बाद हमने टू यूज़ किया ये बताने के लिए कि अभी 2 आवर्स होने में कितनी देर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पास्ट. refers to the amount of time past the hour. Look at the example. It's a 5:10. 5:10 means that 5 minutes has been passed after 10 o'clock. यानी 10 बजने के बाद 5 minutes और पास्ट हो चुके हैं। Next prepositions we have is between and. To talk about time that separates 2 points यानी ऐसे वक्त के बारे में बात करना जो 2 पॉइंट्स को अलग कर रहा हो। Look at the example. They lived in New York between 1998 and 2004. कि वो न्यूयॉर्क में रहते थे 1998 से 2004 तक यानी 1998 से 2004 के बीच वो न्यूयॉर्क में रहते थे। Here 1998 is 0.1 and 2004 is 0.2. Next is within. Refers to a span of time during which something may occur. Within refer करता है उस वक्त को कि जिसके दौरान कुछ हो।
Look at the example. You should receive a reply within 7 days. आपको 7 days के अंदर जवाब मिल जाना चाहिए. 7 days is a span of time कि जिसके लिए हमने within यूज़ किया है. Now move to the third type of preposition, which is preposition of movement or direction. In prepositions of movement, we talk about the movement from one place to another. Prepositions of movement में movement means हरकत करना. तो prepositions of movement में हम बात करते हैं किसी चीज़ की हरकत के बारे में. Here are some words on your screen जो हम prepositions of movement के लिए यूज़ करते हैं. Look at the picture number 1. Onto the box. Now if I say the ball landed onto the box, that means ball box के ऊपर आकर गिरी. So onto means the movement on a surface, यानी किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखा जाएगा तो हम उसके लिए कौन सी preposition of movement यूज़ करेंगे? onto. ऊपर आने के लिए हमने movement यूज़ की थी onto. नीचे आने के लिए हम यूज़ करते हैं off. The ball came off the box. That means कि बॉल बॉक्स से नीचे आ गई. So नीचे आने की मूवमेंट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? OFF off. Under the box. Now if I say the ball rolled under the box, that means कि बॉल बॉक्स के नीचे से होती हुई गई. Over the box. Over the box means ऊपर से होते हुए जाना. नीचे की मूवमेंट को हम कहते हैं अंडर, और वो मूवमेंट जो ऊपर से होती है उसे हम कहते हैं ओवर. Around the box. The ball moved around the box means इर्द गिर्द चक्कर लगाना. So in the picture you can see कि बॉल की मूवमेंट को बॉक्स के हर साइड दिखा रहे हैं. दैट मीन्स कि बॉल बॉक्स के अराउंड मूव कर रही है. सो किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अराउंड. अवे फ्रॉम द बॉक्स. नाउ इफ़ आई से द बॉल इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, दैट मीन्स कि बॉल बॉक्स से दूर जा रही है. सो दूर जाने के लिए जो हम मूवमेंट यूज़ करते हैं वो है अवे फ्रॉम. नेक्स्ट इज़ टूवर्ड्स द बॉक्स. टूवर्ड्स मीन इसकी तरफ आना. द बॉल इज़ कमिंग टूवर्ड्स द बॉक्स. दैट मीन्स कि बॉल बॉक्स की तरफ आ रही है. दूर जाने के लिए हमने मूवमेंट यूज़ की थी अवे फ्रॉम, और किसी चीज़ की तरफ आने के लिए हम मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं टूवर्ड. पास्ट. द बॉल पास्ट द बॉक्स. प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में पास्ट हम यूज़ करते हैं किसी के सामने से गुज़र जाना. सो इन दिस पिक्चर बॉल बॉक्स के आगे से गुज़र रही है. सो वी कैन से द बॉल पास्ट द बॉक्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज थ्रू द ट्यूब. थ्रू द ट्यूब मीन्स कि किसी एक चीज़ के अंदर जाके उसके दूसरी साइड से बाहर निकल जाना. एज यू कैन सी कि बॉल एक साइड से ट्यूब के अंदर जा रही है और दूसरी साइड से बाहर निकल रही है. अप द स्टेयर्स. अप द स्टेयर्स मीन्स ऊपर की तरफ जाना. द बॉल इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स. दैट मीन्स कि बॉल स्टेयर्स से ऊपर जा रही है. इसकी अपोजिट डाउन द स्टेयर्स. ऊपर जाने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया अप. नीचे आने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डाउन. द बॉल इज़ कमिंग डाउन द स्टेयर्स. आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स बाहर निकलना. इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि बॉल को बॉक्स के बाहर लाया जा रहा है. दैट्स वाई हमने इस मूवमेंट के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? आउट ऑफ. इसकी अपोजिट
कि जब बॉल को हम किसी चीज़ के अंदर रखेंगे, सो अंदर रखने की मूवमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इनटू द बॉक्स। बाहर निकालने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स एंड अंदर रखने के लिए इनटू द बॉक्स। अलोंग द रोड, द बॉल इज़ मूविंग अलोंग द रोड, यानी साथ साथ आगे बढ़ना। बॉल रोड के साथ साथ आगे बढ़ रही है। इन द नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी across the road, that means movement from one side to another side, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए जो preposition हम यूज़ करते हैं वो है across। along the road means रोड के साथ साथ चलना and across the road means रोड के दूसरी तरफ जाना। So students, we have learned preposition of place, prepositions of time and prepositions of movement. Now open page number 68 and 69 of your book and let's see, there are some words in your books. Let's read them and understand them as well. Using prepositions correctly. Number 1, among. Something is shared among several persons. Between, something is shared between two persons. अगर कोई चीज़ ज़्यादा लोगों में शेयर की जा रही है तो हम वहाँ पे preposition यूज़ करते हैं among। लेकिन अगर कोई चीज़ सिर्फ 2 persons में शेयर की जा रही है तो हम वहाँ preposition यूज़ करेंगे between। ये डिफरेंस है among and between में। 2 persons के साथ हम between यूज़ करते हैं and ज़्यादा persons के साथ हम among यूज़ करते हैं। Next word we have is beside. This means at the side of, यानी कि किसी चीज़ के बराबर में। Look at the example. The doctor stood beside the bed. डॉक्टर बेड के बराबर में खड़े थे। Now there is another word besides. In first word हमारे पास beside में s नहीं था। In the second word we have besides with s. This means in addition to. ठीक है, besides का मतलब होता है कि इसके अलावा। Several girls were there besides Margaret. That means कि मार्गरेट के अलावा वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ मौजूद थी। Number 3, from. One thing or person is different from another. एक चीज़ या एक पर्सन किसी दूसरी चीज़ या पर्सन से अलग होते हैं। सो इस से वर्ड के लिए हम ने जो प्रपोजिशन यूज़ की है वो है फ्रॉम। नेवर से डिफरेंट टू और डिफरेंट दैन। डिफरेंट के साथ आप टू या दैन का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। डिफरेंट फ्रॉम इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इन। दिस शोज पोजिशन इन वन प्लेस। ये शो करती है किसी प्लेस में पोजीशन। द किंग वॉज इन हिज काउंटिंग हाउस। किंग अपने काउंटिंग हाउस में था। सो हमने क्या वर्ड यूज़ किया यहाँ पे किंग और काउंटिंग हाउस को ज्वाइन करने के लिए इन। इन टू शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन टू शो करती है मूवमेंट। द बॉय फेल फ्रॉम द ट्री इन टू द रिवर। बॉय ट्री से रिवर में गिर गया। सो ये मूवमेंट हुई। ट्री से रिवर तक की जो मूवमेंट हुई उसे हमने क्या कहा, इनटू। द लास्ट वन वी हैव इज पास्ट। दिस इज़ अ प्रपोजिशन एंड इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ वर्ब। ये एक प्रपोजिशन है और हमेशा वर्ब के साथ यूज़ होती है। द सोल्जर्स मार्च पास्ट द सल्यूटिंग बेस। सोल्जर्स ने मार्च करते हुए सल्यूटिंग बेस को पास्ट कर लिया, यानी कि उसके पास से होते हुए, उसके आगे से होते हुए गुजर गए। ठीक है, हमने पढ़ा था किसी चीज़ के सामने से होते हुए चले जाने के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, पास्ट। देयर इज़ अ नोट, पास्ट इज़ नॉट अ प्रीपोजिशन बट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब पास। अगर सेंटेंस में पास्ट का वर्ड मौजूद है PASSED तो वो प्रीपोजिशन नहीं है।
बल्कि वो पास की पास्ट फॉर्म होती है। PAST, past, is a preposition. I hope you understood. Okay students, now let's talk about your home task, which is do exercise 82 of page 69 in Junior English book. जूनियर इंग्लिश बुक की एक्सरसाइज 82 आप बुक में ही करेंगे जो पेज नंबर 69 पर मौजूद है। डू एक्सरसाइज 83 ऑफ पेज 69 फ्रॉम जूनियर इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी। एक्सरसाइज 83 आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में करनी है जो 69 पे ही मौजूद है। Read and understand page 13 and do activity 1 on page 14 of activity book. Activity book के पेज नंबर 13 को आपने रीड करना है और अच्छी तरह समझना है। एंड देन उसके बाद आपको एक्टिविटी 1 एक्टिविटी बुक में सॉल्व करनी है। In exercise 2, what you have to do is pick out the preposition in each of these sentences. There are 10 sentences और आपको हर सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड preposition है and then you have to circle the word in book only. Okay? आपको बुक में ही सर्कल करने हैं prepositions हर सेंटेंस में। Like there were 4 eggs in the blackbird's nest. Blackbird के nest में 4 eggs थे. So which word is connecting these two nouns? In, right? In is the preposition because in हमें बता रहा है कि blackbird के nest में 4 eggs थे. Like this you have to find preposition in other sentences as well. Move to the next exercise. Okay, and in exercise 83 you have to make sentences of any 10 prepositions. Got it? आपको 20 prepositions given हैं लेकिन आपको सिर्फ 10 prepositions सिलेक्ट करनी है और उनके sentences अपनी कॉपी में बनाने हैं। ये एक्सरसाइज आप इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू एक्टिविटी बुक पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आपको कुछ prepositions given हैं, आपको इन पिक्चर्स को अच्छी तरीके से देखना है और समझना है। एंड आफ्टर दैट on page number 14 you have to complete activity number 1. Look at the pictures and fill in the gaps with correct prepositions. आपको इस पिक्चर को देखना है और ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी preposition यूज़ होगी। Like the bag is dash the desk. Bag desk के कहाँ है? पिक्चर में ढूंढिए डेस्क कहाँ है और फिर बैग कहाँ है। इट इज़ अंडर द डेस्क, राइट? डेस्क के नीचे है, सो यू विल राइट द बैग इज अंडर द डेस्क। यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट preposition. If you still have any query about this topic, then watch this video again. Complete all your work before the next lecture. See you in the next class. Keep watching and keep learning. Don't forget to subscribe our channel to never miss an update. Stay safe everyone. Allah Hafiz to all of you.